talk is about intercession. तो आज का जो टॉपिक है वो है मध्यस्थी प्रार्थना। Okay, are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Okay, how many of you all were at home during the lockdown? कितने लोग आप घर पर थे लॉकडाउन के दौरान? Pastor, we all were at home. हम Hallelujah. सभी लोग घर पे थे। Okay, many of us, we were afraid and we were scared during the lockdown. बहुत सारे लोग हम डरे हुए थे, भयभीत में थे। We did not know what to do next. हम नहीं जानते थे अगला क्या करना है। Okay, some of us, we just wasted our time और थोड़े लोगों ने तो हमने समय को बर्बाद किया। watching the news, how many people died. मतलब न्यूज़ को देखते कितने लोग मर गए। How many of you were like this? कितने लोग ऐसे थे? All the time. इतले केसेस झाले हिंगा, इतले केसेस तिंगा झाले. Hallelujah. इतना केस यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर हो गया। And one of the things which I understood, सो एक बात पासवान समझे, this was the best time to pray for one another. और ये सबसे अच्छा समय था एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। Okay, and I believe और हम विश्वास करते हैं one of the most powerful ministries is the ministry of intercession. और सबसे सामर्थ भरा सेवकाई जो है वो है मध्यस्थी Okay, प्रार्थना। the gospel is not a one man show. देखिए, जो वचन प्रचार करना है वो एक इंसान का I'm ये more नहीं है। anointed than you. I'm more gifted than you, and all these मैं things. तुमसे और आशीर्वादित किया गया You know हूँ। what is the gospel? ये गॉस्पल क्या It's है? all about carrying one another's burden. ये सुसमाचार एक दूसरे के मतलब भार को लेकर But चलना today है। we sadly, we give our burden to somebody else. लेकिन दुखी की बात ये है कि हम We अपने भार don't को want to दूसरों को carry. देते We don't हैं। want to carry anybody's burden. हम किसी का भार को उठाना ही Jesus नहीं carried my चाहते। burden. No, enough. यीशु मसीह ने मेरे भार को उठाया, बस काफी I है। don't want to carry your मुझे burden. और किसी You का give. You मतलब don't give भार your नहीं burden to उठाना। me. You give your burden to Jesus. Hallelujah. हालेलुया। In one way or another, you are right. एक बात और दूसरे बात में आप सही है। But if Jesus is telling you, Baba, bless him with something. तो पर यीशु मसीह आपसे कह रहा है उसको आशीर्वादित कर किसी चीज से। वो भूखा आ रहा है, आपको खाना दे और He's तू come बोलता है hungry and प्रभु के he's पास asking food. मांग लो, माना आएगा ऊपर से। आपके पास बहुत है, हर दिन वेस्ट कर रहा है तू। हालेलुया। हालेलुया। Are you all understanding? कि सबको समझ में आ रहा Why है? are you blessed? आप क्यों आशीर्वादित हैं? Ask your neighbor, why are you blessed? अपने पड़ोसी से पूछो क्यों आप आशीर्वादित हैं? You're blessed to be a blessing. आप आशीर्वादित हैं कि आप दूसरों के लिए You're आशीर्वाद बने blessed हैं। so that you could actually provide for somebody else. आप आशीर्वादित हैं कि आप दूसरे को भी दे सके। But sadly we become like that beast. We want to capture everything. और हम दुखी की बात यह है कि हम सब एक ही जगह में जमा करना चाहते हैं। And that is exactly what is happening today. और यही चीज आज के दिन भी हो रही है। If you open your Bibles to Daniel chapter 2, दानियल का 2 अध्याय it speaks about King Nebuchadnezzar. और राजा नेबुकदनेस्सर के विषय में बोल रहा He है। gets a dream उसको एक सपना आता and है he's deeply troubled. और वो बहुत सताया जा रहा है। None of his wise men उसके जितने ही बुद्धिमान जो थे can tell and interpret his dream to him. और वो उसको सपना के विषय नहीं बता पा So रहे he gets थे। very angry. उसको बहुत गुस्सा आता है। He decides to kill every wise man in Babylon. वो निर्णय लेता है कि बेबीलोन में जितने ही बुद्धिमान Now when व्यक्ति हैं उन Daniel सबको comes मारना to चाहता है। know, लेकिन जब दानियल को इस विषय He मालूम goes पड़ता है, and meets the king. वो जाकर राजा से मिलता है And he asks the king for some more time so that he can interpret the dream for और वो him. राजा से थोड़ा समय मांगता है कि वो इस सपने के विषय में वो बताए। And the Bible says in Daniel chapter 2 verse 17 to 18, दानियल का 2:17 से 18। then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends. तब दानियल अपने घर गया और अपने दोस्तों से उसने बताया। He urged them to plead for mercy from God of heaven concerning this mystery. और उसने अपने दोस्तों से पूछा कि प्रार्थना करे कि परमेश्वर इसके विषय में So बताए that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. See, the king gets a dream. देखिए, राजा को एक सपना आता He है, cannot understand. उसको समझ में नहीं He आता tells all his wise men, explain. और अपने सभी जो बुद्धिमान है उन सबको बोलता है कि इसका विषय बता Everybody is मतलब। shivering. They don't know how to explain. और सभी लोग कांप रहे, नहीं जानते कि कैसे बताएं। But Daniel, he has a gift of interpretation. लेकिन दानियल को मतलब सपना के विषय बताना ये एक वरदान When है। he comes to know this, what does he do? और जब उसको मालूम पड़ता है तो वो क्या करता He है? goes to his 3 friends. वो अपने 3 दोस्तों के पास जाता है He asks his 3 friends to pray for him. और वो उनसे पूछता है कि इसके विषय में प्रार्थना करे। He does not say, "Oh, I am more anointed than
y'all. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं सब तुम सभी से अभिषेक Oh, हूँ। I have got the gift of interpretation. मुझे एक ऐसा वरदान है, मतलब सपने के विषय He में was a बताना। mighty man of God. वो परमेश्वर का He शक्तिशाली was a known व्यक्ति था prophet. और वो एक भविष्यद्वक्ता जैसा भी था। Yet he asked his friend लेकिन फिर भी वो अपने to pray along with दोस्तों him. से मांगता है कि वो उसके साथ में प्रार्थना Many करें। people, they don't ask, they don't believe in asking for people to pray for them. मतलब थोड़े लोग ऐसे होते हैं दूसरे से मांगते नहीं, मतलब प्रार्थना Are you करने a के लिए person खुद like के लिए। this? क्या आप ऐसे Oh, व्यक्ति why should हैं? I ask that person to pray क्यों for मैं me? उससे पूछूं प्रार्थना करने के लिए? Whatever God wants, it will happen in my life. जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में हो जाएगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ You में आ heard रहा है? Joela's testimony. आपने अभी जोएला के गवाही को She सुना है। requested to be prayed for a infection in her eye. तो उसने अपने आंखों के इन्फेक्शन के लिए उसने She could have प्रार्थना said, मांगा you know, "Oh, whatever God wants, let it happen." और उसने ऐसे नहीं कहा कि जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है हो जाए, But instead, she requested and she got her miracle. लेकिन उसने विनती किया और उसके बाद में उसको अपने चमत्कार को Are you देखने a person मिला। like this? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं? Are you a person who does not ask for prayer? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना के लिए नहीं मांगते? We all need to pray for one another. हम सभी को एक दूसरे के लिए How many प्रार्थना of you करना are है। praying for us? कितने लोग आप हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? So, I request you all to pray for us every और single day. पासवान Okay? हमेशा आपसे विनती करते हैं कि हमारे It's लिए very प्रार्थना करें important to pray for one another. और ये बहुत जरूरी है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Daniel is known as the wisest man in Babylon. और दानियल को जाना जाता है बेबीलोन में सबसे You know बुद्धिमान what is व्यक्ति। the meaning of Babylon? ये बेबीलोन का मतलब क्या है? Anybody knows what is the meaning of Babylon? क्या कोई भी जानता है ये बेबीलोन का मतलब Babylon क्या means है? confusion, city of confusion. बेबीलोन का मतलब सब गड़बड़ी, एक ऐसा शहर जो पूरा And, गड़बड़ and है। yet he was a man filled with godly wisdom. लेकिन फिर भी ये व्यक्ति पूरे परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ But है he did not take great stand and say, I am the best. और उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं सबसे बेहतर हूँ। He believed in उसने the विश्वास importance किया। of intercession. उसने विश्वास किया कि मध्यस्थी प्रार्थना की मतलब जो There is great importance है, power released when we pray for one another. बहुत बड़ा सामर्थ बाहर निकलता है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते You हैं। know, I can reveal so many things. और कितने ही सारी चीजें बता सकते हैं। Okay? When we have prayed together, we have seen great breakthroughs. और जब हमने मिलकर प्रार्थना की है महान चमत्कारों को देखा है। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ So रहा है? when we pray together for one another, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं we will मिलकर, see the greatest works of God in our lives. परमेश्वर के महान कार्यों को हमारे जीवन में हम देखने पाएंगे। In the end times, अंत के दिनों में Satan जो will शैतान try to है destroy us. वो हमें नाश करने की कोशिश करेगा। Okay, Satan will try to, ruin our lives. वो हमारे जीवन को खराब करने की कोशिश And he करेगा will do everything possible. और चाहे जो कुछ भी हो पूरी But कोशिश if we करेगा। pray for one another, लेकिन हम जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, I want to tell you, we will be safe. हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम बचाए जाएंगे। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? In Exodus chapter 17 verse 8 it says, निर्गमन में लिखा है, here Moses, he goes to Joshua and tells Joshua, यहाँ पर मूसा यहोशुआ से जाकर कहता है, Joshua, choose some men and go and fight with the Amaleks. और थोड़े लोगों को चुन और एमकलाई लोगों से जाकर Tomorrow I लड़े। am going to be on that hill मैं कल उस जो पहाड़ की चोटी पर रहूंगा with the rod of God in my hand. और परमेश्वर ने दी हुई छड़ी के साथ। And Joshua, he does what Moses tells him to do. और यहोशुआ करता है वही चीजों को जो मूसा उससे He कहता है goes and fights with the Amalekites. और वो जाता है और एमकलाइट से वो लड़ता है। And Moses, Aaron and Hur, they are on that hill. और मूसा उस पहाड़ की चोटी पर है And very interesting. और बहुत खास Moses lifts up his hand. और मूसा अपने हाथों को ऊंचा उठाता है And the Bible tells us, और पवित्र शास्त्र कहता है as long as his hands were lifted up towards the heavens, और जब तक उसके हर हाथ स्वर्ग की तरफ Joshua होते was थे winning the battle down. और यहोशुआ जो युद्ध को लड़ रहा था वो नीचे What जीत does रहा this था। mean? इसका मतलब क्या है? This means as long as Moses was praying, जब तक मूसा प्रार्थना कर रहा था somebody else was winning the battle. कोई और युद्ध को जीत रहा Are you all था। understanding? क्या सबको समझ में आ रहा But है? when Moses, his hands got tired, he put his hands down. जब मूसा Joshua, थक what was गया, happening to Joshua? जब मूसा थक गया और उसके हाथ जब नीचे कर What रहा was था तो happening क्या to हो रहा था यहोशुआ के Joshua? साथ? Joshua was losing the battle down. तो यहोशुआ नीचे जो युद्ध था वो हार रहा था। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है?
As long as we are praying, जब तक हम प्रार्थना कर रहे हैं we are on the winning side. तो हम जीत के तरफ है। As long as you are praying, you are on the winning side. जब तक आप प्रार्थना कर रहे हो You आप may जीत see के great तरफ है। storms in your life, आप देखोगे महान विपत्तियों के आपके जीवन but में, don't stop. लेकिन आप रोकिए You मत, keep praying. आप प्रार्थना करते You रहिए are on the winning side. क्योंकि आप जीत के तरफ है। And the first attack what the devil does in your life. और पहला आक्रमण जो शैतान आपके जीवन में करता है, Do you know that? आप जानते हैं वो He will क्या है? attack your prayer time. वो आपके प्रार्थना जीवन के That's ऊपर the आक्रमण first करेगा attack. और ये पहला He आक्रमण will try है। to disturb you. वो आपको When you डिस्टर्ब pray, करेगा। suddenly you decided to pray, suddenly the lights will go off. जब आप प्रार्थना करने की मतलब ठान लेते हैं और अचानक से लाइट चली जाएगी, You will say demon hello. अब आप कहोगे शैतान आ गया No, light cut, fire cut झालो आणि और वहां पर कुछ कनेक्शन था वो कट हो Are गया। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? The first attack, if Satan wants to destroy your life, he will destroy your prayer life first. अगर शैतान आपको नाश करना चाहता है तो वो आपके प्रार्थना जीवन के ऊपर आक्रमण करेगा। He will take you for picnics every single day. वो हर रोज आपको पिकनिक को लेकर Every जाएगा single day you will want to go for picnics. और हर दिन आप पिकनिक को जाना को And when you come चाहोगे home, you'll say, Lord, I'm too tired today. और आप पिकनिक जाकर आने के बाद कहोगे परमेश्वर मैं बहुत थक गया। Don't miss your time with God. परमेश्वर के साथ अपना समय Tell बिताना, your neighbor, don't चुकिए miss your मत। time with God. अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर के साथ समय And बिताना it's ना very भूलें। interesting. As long as Moses, his hands were in towards the heavens, और ये they were बहुत winning the battle. खास है कि जब तक मूसा के हाथ स्वर्ग की तरफ उठे थे वो युद्ध को जीत रहे Now थे। Moses is tired. अब मूसा थक गया The battle is raging on 4 hours, 5 hours. Moses cannot keep his hands on top. और जो युद्ध था 4-5 घंटे के लिए चलते जा रहा था और मूसा थक रहा था। So what happens? तो फिर क्या होता है? There comes Aaron and Hur. What do they do? तो एरन और एक व्यक्ति आते हैं तो वो क्या कहते हैं? They hold his hands, right? तो वो उसके हाथों They को support पकड़ते him, हैं, right? वो उसकी मदद करते Are हैं। you all understanding? That's where we are coming to. तो यहाँ पर ही हम आ रहे हैं। Tell your मतलब neighbor, don't fight your battles alone. अपने युद्ध को अकेले ही मत लड़ो। Tell your other neighbor, don't fight your battles alone. अपने दूसरे पड़ोसी से कहो कि अपने युद्ध को अकेले ही मत Are you लड़ो। all क्या सबको understanding? समझ में आ रहा है? Are you all learning? क्या आप कुछ सीख रहे हो? You know, sometimes we want to fight our battles alone. और कभी कभी हम अपने युद्ध को अकेले ही लड़ना All the चाहते time हैं we are praying and we are tired sometimes. और बार बार हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम थक रहे And हैं। that's where the ministry of intercession is very important. और इसी समय में इसी दौरान मध्यस्थी प्रार्थना बहुत जरूरी है। Are you all क्या सबको understanding? समझ में आ रहा है? During this lockdown, और इस लॉकडाउन के you know, दौरान we have prayed for so many people. और कितने ही सारे लोगों के लिए प्रार्थना You किया know, we have interceded for so many people. और कितने ही सारे लोगों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना भी So किया many pastors have been demoralized during this और lockdown. कितने ही मतलब जो पासवान थे So वो many, so ये much गए थे congregation has split. और कितने ही मतलब ऐसे सेवक People या have मतलब lost अलग हो their गए faith. और लोगों ने अपने विश्वास को People खो are दिया। believing in COVID more than they believe in Jesus. लोग कोविड के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे थे वचन के ऊपर से भी। Can you see COVID? क्या आप कोविड को देख सकते हैं? How do you know it is COVID? आप कैसे जानते हो कि ये कोविड Only है? you can answer. Hallelujah. सिर्फ Only आप the ही इसका science. जवाब दे सकते Are you हैं। all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? What I'm trying to tell you all is, देखिए हम आपसे क्या कहना in चाहते this हैं, time we need to pray for one another. ऐसे समय में हमें एक दूसरे के लिए That प्रार्थना our करना faith है will not shake. और फिर हमारा विश्वास नहीं You know, just डगमगाएगा। before Jesus went on the cross, और देखिए जब यीशु मसीह He क्रूस पे prays जाने the से Father. पहले वो पिता से प्रार्थना करता है and says, Lord, protect them और वो कहता है Keep them परमेश्वर उनकी रक्षा united. कर, उन्हें एक रख so that they will not shake. कि वे हिले नहीं। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ Have रहा you है? seen your brother shaking in these times? क्या आप अपने भाई को क्या हिलते हुए आपने देखा है इस समय के दौरान? Then you should pray for your brother. तो आपको अपने भाई के लिए प्रार्थना करना Don't है। go and gossip behind your brother. अभी आप जाकर अपने भाई के पीछे पीछे मत he just given कुड़कुड़ाइए up on God. और Don't ऐसे do that. आप ऐसे मत करें। Some people say Jesus is the intercessor. और थोड़े लोग कहते हैं यीशु मसीह मध्यस्थी प्रार्थना करने वाला It है is very true. Jesus और is ये praying for बहुत each सच and every है one of और us. यीशु मसीह हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, But also, we also need to pray for one another. लेकिन हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। Are you all understanding? क्या सबको समझ Oh, में आ रहा Jesus है? is praying for me. No, I'm sleeping here. यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, मैं सो जाता Let हूँ me यहाँ sleep. Let me sleep. पे। मुझे सोने दो। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? The Bible says men have to pray for one another. और पवित्र शास्त्र कहता है जो मनुष्य है वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना You know, चाहिए। in 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, 2 थिस्सलुनीय का 3 और उसका 1। here who is writing this? Paul. तो ये कौन लिख रहा है? Not your पौलुस neighbor लिख रहा Paul, है। okay? The great apostle Paul. ये महान अपोस्टल पॉल, Okay? लिख रहा है। What does he write? तो वो क्या लिखता है? Finally, brethren, pray for us. तो Pray for आखिरी में us. मेरे भाइयों हम सभी के Paul लिए had प्रार्थना seen such करें। miracles. और पौलुस ने कितने ही सारे चमत्कारों And को he's देखा है saying, pray for us. और वो कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Are you greater than Paul?
क्या पौलुस से भी आप महान हैं? Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? He's saying, pray for us. और वो कह रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करो For what? That the word of the Lord may run swiftly and be glorified. कि परमेश्वर का वचन साफ से जाए और वो महिमा से ये हो, as it is in with you. और जैसे आपके साथ है, And that we may be delivered from unreasonable wicked men. और जो अकारण जो बुरे लोग हैं उनके हाथ से हम छुड़ाए Are जाए। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? See, the enemy wants to trap us. देखिए जो दुश्मन है वो हमें फंसाना The चाहता enemy है। wanted to trap Paul. देखिए जो दुश्मन था वो पौलुस को भी मतलब फंसाना चाहता था। And that's the reason Paul is saying, pray for us. इसी कारण की वजह से पौलुस कहता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मैं चर्च जा रहा हूँ, पास्टर प्रे कर रहे हैं, मैं तो बस। कलीसिया में जा रहा मैं हूँ, किसी को प्रार्थना प्रार्थना करें। नहीं करेगा। पास्टर कर रहे हैं, मैं पास्टर को देता है थोड़ा डोनेशन, उसका काम है प्रार्थना करने का, मेरा काम सोने का है। Are you like this? क्या पैसे है? Are you like this? क्या पैसे है? I've seen some people, पास्टर प्रे करा, and they're sleeping at home. Hallelujah. हालेलुया। Come for meeting. Which प्रार्थना place? सभा के लिए आए। Last time only you came, you forgot. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 25, again Paul says, एक तेसलोनिया का 5 और brothers and 25, sisters, pray for us. भाई और बहनों हमारे लिए प्रार्थना करें। Tell your neighbor, pray for me. अपने पड़ोसी से कहो मेरे लिए प्रार्थना करो। Don't feel shy. Hallelujah. हालेलुया। See, we must pray for one another. देखिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। Pastor, what I will get if I pray for him? मुझे क्या मिलेगा उसके लिए प्रार्थना Do you want करके? to know? आप जानना चाहते हैं आपको क्या मिलेगा? If you think like this, देखिए अगर आप ऐसे सोचते हो you will be zero, always zero in your life. तो आप हमेशा शून्य ही Even if रहोगे। you don't get, no problem, you still अगर pray. आपको कुछ नहीं मिलता तो भी आप प्रार्थना करें। There was a time one lady came to me. और एक ऐसा समय था, एक औरत पासवान के पास आई। Pastor, my back is paining. उसने कहा पासवान मेरे पीठ में For बहुत 3 दर्द months है I'm roaming with this belt. और 3 महीने से मैं बेल्ट के साथ ही हूँ। My back also used to pain that time. और उस समय में पासवान का कमर भी दर्द में I था could not get sleep. और पासवान को भी ठीक से Maybe नींद नहीं 1-2 आता hours I था। used to sleep. 1-2 घंटे ऐसे For सोते many थे months. बहुत महीनों के लिए। I needed to be prayed over seriously by somebody. और पासवान को भी कोई आकर प्रार्थना करे ऐसा लग रहा And here था। this lady is coming and saying, Pastor, please pray for me. और एक औरत आती है और पासवान से कहते पासवान मेरे लिए प्रार्थना I'm करे। telling you, I pray for her and she's healed. और पासवान ने उसके लिए प्रार्थना किया और उसको Next चमत्कार Sunday मिल she गया। comes without a belt. I'm और totally अगले इतवार healed. को वो बिना बेल्ट के साथ आती My है back is still paining. और पासवान का कमर तो अभी भी दुख रहा है। I'm crying to God, Lord, what is this? और पासवान परमेश्वर से प्रार्थना करे, ये क्या है परमेश्वर? I am shaken here. Somebody else is getting healed. I am here still struggling. और कोई किसी और को चमत्कार मिलता है और पासवान अभी भी जूझ रहे हैं यहाँ पर इस दर्द God के साथ। supernaturally heals me. I don't even know when I receive the miracle. और परमेश्वर ने अलौकिक रीति से उन्हें चंगाई दी और उनको पता भी नहीं चला कब वे ठीक हो गए। Don't be like this. तो आप ऐसे मत बने। Oh, because God has not answered my prayer, I am not going to pray for him. ऐसे मत बोलिए कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं दिया इसलिए मैं दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Because I did not get my passport, I don't want him to get the passport. मुझे पासपोर्ट नहीं मिला इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको So भी I'll not मिले। pray. मैं प्रार्थना नहीं करूंगा Because I उसके didn't लिए। get the promotion, I don't want him to get. So I'll not मुझे pray. प्रमोशन नहीं मिला इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो व्यक्ति को भी मिले। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Ask your neighbor, are you like this? अपने पड़ोसी से पूछो क्या आप ऐसे हो? If you are like this, you need to change. अगर आप ऐसे हो तो आपको बदलना है। Hallelujah. हालेलुया। I'm not doing any business. Why I should pray for my neighbor to do business? मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने पड़ोसी के लिए क्यों प्रार्थना करूँ व्यापार करने के लिए? James chapter 5 verse 16. याकूब का 5 और 16। Therefore, confess your sins to one another अपने पापों को एक दूसरे के साथ बताओ and pray for one another और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो that you may be healed. कि आप चंगाई पाओ। You want to receive healing? आप चंगाई को पाना चाहते हैं, You pray for somebody else, you will receive healing. आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आपको चंगाई मिलेगी। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ The रहा है? Bible is so clear. और पवित्र शास्त्र कितना साफ रीति Pray से for है। one another that you may be healed. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि आप चंगाई पाओ। Very interesting. बहुत खास है ये। Oh, I never read this scripture, Pastor. अरे पासवान मैं तो Now ये कभी वचन को I'm नहीं going to pray for पढ़ा। everybody. अभी Hallelujah. तो मैं सबके लिए प्रार्थना करना When शुरू it is in the करूंगा। word of God.
जब परमेश्वर के वचन में है, the Bible gives us a surety. जब पवित्र शास्त्र हमें ये होगा करके It कहता is bound है to happen. और ये होगा ही। Do you need healing in your life? क्या आपके जीवन में आपको चंगाई Start चाहिए praying for somebody. तो किसी और के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। The Bible is so clear. और पवित्र शास्त्र कितने साफ रीति से कहता Even है, before we go to Him, और उसके पास जाने से He पहले knows भी, what we are going through. और वो जानता है कि हम क्या मांगने वाले हैं, He knows everything what we need. और वो जानता है हमें क्या चाहिए। But all the time we always say, give us our daily bread, give us our daily bread. लेकिन एक ही प्रार्थना करेंगे, हमें दिन भर की रोटी हमें दे। We are not telling, give my neighbor his daily bread. हम ये नहीं कहते कि हमारे पड़ोसी को भी दिन भर की रोटी दे। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Soglang Sodmata. क्या सबको समझ में आ रहा है? Anybody? Today you prayed for your neighbor. Anybody prayed for your neighbor? क्या आज किसी ने भी अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया? Pastor, why I should play? He's not smiling only at me. क्यों Every प्रार्थना time, करूँ? वो तो मुस्कुराता भी नहीं है। every time he has a black face. हर No बार matter how उसका much चेहरा fair and काला lovely ही he puts, रहता है। he looks still black with his face. कितना भी फेयर एंड लवली लगाएगा तो भी वो काला ही दिखता है उसका चेहरा। You want to be healed? आपको चंगाई चाहिए? You want to be healed? आपको चंगाई चाहिए? Yes, Pastor. Then pray for your neighbor. हाँ पास्टर, आप कहते हो तो आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना Are you शुरू all करें। understanding? क्या सबको समझ में My आ रहा boss है? is shouting every time. और मेरा जो बॉस You है pray वो for हर your बार चिल्लाते रहता है, You तो pray आपने for अपने your बॉस boss. के लिए प्रार्थना करिए He will not shout. और फिर उसके बाद में वो नहीं चिल्लाएगा। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Some of us we are sick in our bodies because we have failed to pray for one another. और थोड़े लोग हम अपने शरीर में बीमार है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना भूल गए। मतलब You need to pray for one another. तो Tell your neighbor you need आपको to एक pray for दूसरे one के लिए another. प्रार्थना करना है। Tell your neighbor, तो पड़ोसी से कहो, Pastor, what I will get. I already explained. पास्टर मुझे क्या मिलेगा, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। In Job chapter 42, verse 10. अय्यूब का 22 Very interesting. बहुत खास। Job had lost everything in his life. अय्यूब ने सब कुछ अपने जीवन में खो दिया था। How many of you are like Job in this place? How many of you are like Job? Job had lost everything. और अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था। He had boils all over his face, और all उसके- over his body. He had उसके boils. पूरे चेहरे पर, उसके पूरे शरीर पर He was फोड़े निकले struggling in थे his life. और वो जूझ रहा The था Bible says उसके there was जीवन में। none righteous than Job. और पवित्र शास्त्र कहता है अय्यूब के तरह और कोई भी धर्मी Yet व्यक्ति he नहीं lost था, every single लेकिन thing. फिर भी सब कुछ उसने खो दिया था। And what he does? तो उसके बाद में वो His क्या friends करते हैं? came and they mock him and all these things उसके happen. दोस्त आते हैं, उसको और ताने मार के चले जाते हैं, Yet he prays for his friends. लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है। And the Bible tells us और पवित्र शास्त्र the कहता है, Lord restored the fortunes of Job. और पवित्र शास्त्र कहता है अय्यूब ने जो कुछ भी खोया था उसको लौटा दिया When he had prayed for his friends. जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। And the Lord gave Job 2 times और परमेश्वर ने as अय्यूब को much- 2 गुना दिया, as much as he had before. जितना उसके पास था उसका 2 गुना ज्यादा दिया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में How आ many रहा of you want to multiply your blessings into कितने 2? लोगों को अपना जो आशीर्वाद है उसे दुगना करना चाहते हैं? Then get into the ministry of तो intercession. आइए फिर इस मध्यस्थी Start प्रार्थना की praying. सेवकाई में जुड़ जाए। Don't say, Lord, punish my enemies. अबे हमारे साथ प्रार्थना करें, लेकिन अपने पड़ोसी को मतलब Old दंड Testament देने के लिए prayer. मत बोलिए। Old Testament prayer. We still pray, no? Some of us, we still pray, no? Old Testament. पुराने नियम को Lord, punish my प्रार्थना, enemies. प्रभु मेरे दुश्मनों Blind को my दंड दे। enemies. Old Testament prayer. ये सारे पुराने नियम के How many प्रार्थना of you are in the हैं। New Testament? कितने लोग आप नए नियम में What हैं? Jesus says, यीशु मसीह क्या कहता love है? your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो। Pastor, यहाँ नहीं कहना है, कौन है? अरे पास मैंने तो ये कभी सुना ही नहीं। Are you all understand? क्या सबको समझ में आ Tell रहा your है? neighbor, love your enemies. अपने पड़ोसी से कहो अपने शत्रु से प्रेम करो। Tell. कहो That person did wrong to you. उस व्यक्ति ने गलत किया है That's why you आपसे, came for prayer meeting now. इसीलिए तो आप प्रार्थना सभा में पहुंच गए। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? I believe this ministry of intercession हम विश्वास करते हैं ये जो सेवकाई है मध्यस्थी is the प्रार्थना most का, powerful ministry और what, ये सबसे सामर्थ्य भरा what सेवकाई every है Christian can have. कि हर एक मसीह उसके जीवन में हो, And yet we don't want to have this. और फिर भी हम नहीं चाहते ये हमारे Oh, साथ we हो। want prophetic ministry. हमें तो भविष्य दुखता की मदद धिंगा यार, सेवकाई तो मैसेज चाहिए। ही देता. वो उसके पास जाए, वो कुछ वचन देता है, धिंगा यार, उधर जाएंगे। you want to be a part of all ministry except intercession ministry. आप सभी सेवकाई का भाग बनना चाहते हैं, छोड़कर मध्यस्थी What प्रार्थना did के। Jesus pray from the cross? तो यीशु मसीह उस क्रूस के The worst ऊपर से क्या moment of his प्रार्थना life. करता है? सबसे बुरा समय उसके what जीवन does का। Jesus say? तो
यीशु मसीह क्या कहता है? Father, forgive them for they do not know what they are doing. यीशु मसीह कहता है, पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Jesus did not look where he is. और यीशु मसीह ने ये He नहीं was on देखा the कि वो कहाँ पर cross. था। When he made a prayer like this, he was on the cross. जब वो ऐसा प्रार्थना कर रहा था तब वो क्रूस पर था। At the last moments, आखिरी क्षण उसके जीवन the के, situation did not matter. उसकी परिस्थिति उसके मायने नहीं Maybe रखी। you are going through a time like this in your life. शायद हो सकता है आपके जीवन Nothing में भी is आप ऐसे happening परिस्थिति से right. गुजर रहे हो, कुछ भी आपके जीवन में सही नहीं हो रहा है, Everything is wrong. सब कुछ गलत हो रहा Still है, you can pray. लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर सकते हो। Lord, bless my enemies. कहो कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं को आशीर्वादित कर। This is what is all about. तो यही Christian सब life. कुछ है एक मसीह के जीवन का। Okay? Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा You know है? why I am telling you all these things? क्यों हम आपको ये सारे बातें बता रहे So हैं? that you know the importance of this ministry. कि आप जानने पाओ कि इस सेवकाई की जो जरूरत है वो, I think in these times, this is the ministry which is needed. और ऐसे समय के दौरान ऐसे सेवकाई की जरूरत है। Some points I will tell you. तो थोड़े मुद्दे हम आपको बताएंगे। What is intercession? ये मध्यस्थी प्रार्थना क्या है? Intercession is not about self. मध्यस्थी प्रार्थना खुद के विषय नहीं है। Tell your neighbor, intercession is not about you. तो मध्यस्थी प्रार्थना ये आपके विषय नहीं है करके अपने पड़ोसी से कहो। Intercession is about others. मध्यस्थी प्रार्थना दूसरों के विषय होता है। Luke 23, 34. लूका का 23 और 34। And Jesus says, Father, forgive them for they do not know what they are doing. यीशु मसीह कहता है, पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। He was not praying for himself. तो अब वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, He was praying for somebody who was persecuting him. लेकिन वो किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा था जो उसको सता रहे Can you थे। pray for the one who has persecuted you? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपको सता Can रहे you हैं? pray for the one who has stolen your joy? क्या आप ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसने आपकी खुशियां छीन ली Can है? you pray for the one who has destroyed your life? क्या आप ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसने आपके जीवन को नाश कर दिया है? Come on. Can you pray? क्या आप Can प्रार्थना you कर pray for सकते the one who हैं? is doing witchcraft on you? क्या आप इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके ऊपर काला जादू कर रहा है? You know, Stephen, the first martyr, what does he do? Do you जो know? स्टेफन है, जो पहला उसको मतलब In मार Acts दिया chapter- गया था, Stephen is getting stoned. और स्टेफन जो है उसको पत्थर वहां कर रहे Stoned. थे। And मतलब what does he पत्थर। say? You know what is his last word? आप जानते हो उसके आखिरी क्षण में वो क्या Lord, कह do रहा not था? hold this sin against them. वो कह रहा था, परमेश्वर इस पाप को उनके विरुद्ध में मत पकड़े रहो। He was praying और वो प्रार्थना कर रहा for the था, ones who were killing him. वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था जो उसको मार रहे थे। Can you come to this sense and know one thing? क्या आप आपके दिमाग में आप सोच सकते हैं ये That एक we are बात को, called to pray even for our enemies. कि हमें बुलाया गया है हमारे शत्रुओं के लिए भी We प्रार्थना are करने के called to लिए। pray for the ones who are destroying our lives. हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है जो हमारे जीवन को नाश कर रहे हैं। Oh, we only pray for our pastor. हम सिर्फ अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, We want to pray only for the worship leaders. हम सिर्फ वर्शिप लीडर के लिए प्रार्थना करते हैं। Can you come to this sense? क्या आप ऐसे Can you make जगह a पर पहुंच decision सकते हैं? today? क्या आप आज Lord, निर्णय no ले matter सकते what, हैं? I will pray for my enemies. प्रभु चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करूंगा। Thank God you are not in a situation like Stephen. और परमेश्वर की महिमा हो कि आप स्टेफन की तरह परिस्थिति में नहीं हैं। Anybody stoned you? क्या किसी ने आपके ऊपर पत्थर मारा है? Anybody stoned you? किसी ने भी आपके ऊपर पत्थर What मारा you will है? have done? तो आपने क्या किया You होता? take one stone, I take two stones. तो वो एक पत्थर मारता था, आप दो मारते लेकर, I take bigger stone. या फिर बड़ा पत्थर लेते। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? I remember once I was going somewhere. और पासवान को याद आता है जब पासवान कहीं जा रहे Suddenly थे one man, he picked up the big stone. और एक व्यक्ति ने एक बड़ा पत्थर उठाया, I don't know what happened to him. और पासवान नहीं जानते He क्या came हुआ running उसको। to hit me. और वो भाग कर आ रहा था पासवान को मारने के लिए, Nothing happened. और कुछ नहीं हुआ। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा I had worn a helmet, thank God. है? पासवान ने हेलमेट डाला था, Nothing happened. The इसलिए stone कुछ missed नहीं me. हुआ। I prayed for him. और पासवान ने उसके लिए प्रार्थना किया। I prayed. I'm telling you, हम आपसे कह रहे हैं, can you pray for the one who is persecuting you? क्या आप जो आपको सता रहे, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? Can you pray for the one who is jealous? जो आपके ऊपर जलन रखा है, क्या आप ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? If you're not doing that, अगर आप ये नहीं कर रहे you're हो not fit for the ministry of intercession. तो आप सही मतलब नहीं हो मध्यस्थी प्रार्थना के लिए।
Do you want to be fit for the ministry of क्या आप intercession? सही होना चाहते हैं इस मध्यस्थी प्रार्थना के लिए? Oh, why should I pray for them? क्यों मैं प्रार्थना करूं उनके लिए? Because Bible tells. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है। The second thing, दूसरी बात, intercession is all about having burden for one another. मध्यस्थी प्रार्थना ये एक दूसरे के लिए भार होना। Galatians, it गलतियों- speaks about carrying one another's burdens. गलतियों में लिखा है एक दूसरे के भार को लेकर If you don't have चलना। a burden for your brother or sister, अगर आपके भाई और बहन के लिए भार नहीं है how you will pray for them? तो आप कैसे प्रार्थना करोगे उनके How you लिए? will pray for them? तो कैसे प्रार्थना करोगे? There are two types of prayers. देखिए, दो प्रकार के प्रार्थना होते हैं। One is the namesake prayer. एक सिर्फ नाम के लिए किया जाता No है, burden. Father bless them. Enough. कोई भार नहीं है, लेकिन बोल देते पिता उनको आशीर्वादित The कर। other prayer is a prayer filled with burden. और दूसरा प्रार्थना होता है, वो प्रार्थना पूरे भार के साथ होता है। You pray for them. आप प्रार्थना करते हो उनके You लिए, know that something is going to आप change in जानते them. हो कि कुछ तो बदलने वाला है उनके जीवन में, That is the prayer with burden. और ऐसे प्रार्थना भार के And I साथ होते believe हैं। we are called to pray with burden for one another. और हम विश्वास करते हैं हमें बुलाया गया है भार के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। Pastor, if I don't feel like praying for him, पासवान, अगर मुझे उसके लिए प्रार्थना करना मन नहीं लगे तो how do I pray for him? तो कैसे मैं उसके लिए प्रार्थना करूं? Look at him through the eyes of Jesus. तो उस व्यक्ति को यीशु मसीह के नजर से देखो। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? See, when you look at a person through the eyes of Jesus, देखिए, जब आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नजर से देखते हो, that Jesus wants to save him यीशु मसीह उसको उद्धार दिलाना चाहता है। from where? From hell, okay? कहाँ से उद्धार? नर्क से। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा When है? you die, those who believe in Jesus go to heaven. जो कोई जब मरने के बाद में जो कोई भी उद्धार पाता है वो स्वर्ग में But जाता those है। who don't believe in Jesus, they go to hell. जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता वो नर्क में चले जाते हैं। And when you go to hell, you cannot come back. और देखिए, आप एक बार नर्क में गए तो वापस नहीं आ सकते। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? It's there in the Bible. और ये सब कुछ You know, पवित्र Jesus शास्त्र में spoke लिखा about है। hell more than anything else. और यीशु मसीह ने नर्क के विषय में ज्यादा बोला है और किसी If you चीज से भी। if you read the whole Bible, the New Testament, you realize Jesus has warned about hell more than anything else. और आप जब नए नियम को पढ़ते हो तो यीशु मसीह ने चतुराई दी है, मतलब नर्क के विषय में। So even the one who is destroying your life, if you look at him through the eyes of Jesus, you जो will know व्यक्ति- that Jesus wants him to be saved. जो व्यक्ति आपको सता रहा है और उस व्यक्ति को जब आप यीशु मसीह के नजर से देखोगे और यीशु मसीह चाहता है कि वो व्यक्ति उद्धार पाए, Pastor, what I'll get? तो मुझे क्या मिलेगा इससे? If he goes to heaven, what I'll get? You'll get a reward. अगर वो स्वर्ग में गया तो आपको इनाम मिलेगा। Your reward is not in this pocket, on this आपका- world. आपका इनाम आपके This पॉकेट reward, में या इस whatever दुनिया you में get, नहीं will है। go. और जो कुछ भी आपको इस The दुनिया में मिलेगा reward वो which सब is कुछ चला for us in जाएगा। heaven will remain forever and ever and और ever. स्वर्ग में जो इनाम है वो सदा और सदा के लिए रहेगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ And में आ that's रहा the reward which we should press to. और ऐसे इनाम के तरफ हमें दौड़ना है। Chocolate समझ में आता? क्या सबको समझ में आ रहा है? Tell your neighbor, I am understanding. अपने पड़ोसी से कहो मुझे समझ में आ रहा है। If you don't carry one another's burdens, अगर आप एक दूसरे के भार को लेकर नहीं चलते, Jesus carried the cross for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस को उठाया। Thank God you're not coming with a big cross in this place. और परमेश्वर की महिमा हो, आप बड़े क्रूस के साथ यहाँ पे नहीं आते हो। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Is Jesus still on the cross? क्या यीशु मसीह अभी भी क्रूस पर है? Is Jesus still on the cross? क्या यीशु मसीह अभी भी क्रूस पर है? Then why you are going to Jesus who is on the cross? तो क्यों जा रहे हैं आप यीशु मसीह He's जहाँ no पर longer क्रूस there. पर है? वो अभी वहाँ पर नहीं The है। Bible says he is with God, पवित्र शास्त्र कहता है कि seated at वो the right hand of God. परमेश्वर के साथ है, वो दाहिने तरफ Praying for बैठा है, us. हमारे लिए प्रार्थना करते। Amazing, right? अद्भुत है। But sadly, people still go on the Jesus who is on the cross. और दुखी की बात यह है कि लोग अभी भी जाते हैं यीशु मसीह का जो क्रूस पर The Jesus वो who है, is on the cross cannot save you. और जो यीशु मसीह क्रूस पर है वो आपको उद्धार नहीं दिला The सकता। Jesus who has died for your sins यीशु मसीह जो and आपके who पापों is के in लिए heaven मरा, can save you. जो स्वर्ग में है वो ही सिर्फ आपको उद्धार दिला सकता है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में You आ रहा can है? thank me later when we all reach to heaven. आप Hallelujah. लोग पासवान को धन्यवाद दे सकते हैं जब आप स्वर्ग में पहुंचोगे। Are you all understanding? 3 of our church members are already there. तो हमारे कलीसिया के 3 सदस्य पहले से ही वहां पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can I go in front? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं?
Can I go in front? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Intercession is about having patience. और मध्यस्थी प्रार्थना ये धीरज होना है। Maybe you find yourself in a place that you're praying for your children and nothing is happening. आप ऐसे जगह पर हो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। Don't worry, one day God will answer your prayer. चिंता ना करें, परमेश्वर एक ना एक दिन जवाब जरूर God will देगा। answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब There are देगा। times we need to be patient. और एक ऐसा समय होता है हमें धीरज के Oh, साथ things are काम not लेना है। happening. जब चीज नहीं हो रहे, You be patient. You keep on praying. आप धीरज के साथ रहिए और प्रार्थना Don't give करते up. रहिए। Keep on praying. ऐसे keep ही on मत छोड़ asking. दीजिए, प्रार्थना करते रहिए, Matthew मांगते 7:7, रहिए। what it says. मत्ती का 7 और 7 में क्या लिखा है? Come on. Keep on doing those things, right? लगातार करते रहो इन सारी चीजों को। Seeking, asking, knocking. Keep on ढूंढते, doing it. खटखटाते और मांगते, ये करते रहिए। You know, problem with us is we get discouraged very fast. और समस्या ये है कि हम बहुत जल्दी निराश हो We जाते don't हैं। have patience at all. हमारे अंदर धीरज ही नहीं है। Are you a man who doesn't have patience? क्या आप ऐसे व्यक्ति है आपके अंदर धीरज नहीं You है? need to have patience in your life. आपके जीवन में धीरज होना All बहुत the time you जरूरी are है। acting like an atom bomb. हमेशा आप एक एटम बॉम्ब की तरह व्यवहार करते हो। Your fuse, dham. थोड़े ही देर में आप Short circuit. एकदम If anybody says anything, short circuit you become. कोई भी कुछ कहता है तो एकदम शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करते हो। You know this from your ears, smoke also comes sometimes. और कभी कभी आपके कानों से धुआं भी निकलता Are है you a बाहर। person like this? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो? You're praying for that person and that person is saying something to you. आप And उस you, are, व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो और totally वो व्यक्ति कुछ बोल short-circuited रहे हैं now. और आपका पूरा कनेक्शन You पर become शॉर्ट like that सर्किट हो bull. गया। और उसके बाद में red आप cloth. बुल You know, बन- how many have seen that? You know, bull attacking the red cloth. और कितने लोगों ने देखा वो लाल कपड़े के ऊपर वो Tell your neighbor, जो- don't be like this. तो आप अपने पड़ोसी से कहा आप ऐसे ना बने। Pastor कहना शिकोपा देते हैं का lesson नहीं. पाजान कभी कभी उनको सबक भी सिखाना चाहिए ना। What did Jesus do? यीशु मसीह क्या करता है? What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? That's why I always tell our team, you know, it's very difficult. और अपने टीम से पासवान कहते रहते Very हैं कभी कभी difficult. कठिन होता है, But if you do that, you will find great joy in your life. लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो If आप you are सच में आनंद को obedient to the पाओगे। Lord, अगर आप you will आज्ञाकारी बनते find हो परमेश्वर great joy के in your लिए life. तो आपके जीवन में आप बड़े ही आनंद को अनुभव You know, करोगे। peace is not outside. देखिए जो शांति है वो बाहर नहीं है। Outside there can be a storm. देखिए बाहर Where परिस्थिति is peace? तूफानी It हो, is inside. लेकिन सच में जो शांति है वो अंदर है। You should not shake inside. आप अंदर से हिलाए नहीं If जाना you shake चाहिए। inside, अगर आप अंदर से हिल जाते हो then outside even if there's a peace, no problem. You are already shaken. अगर बाहर शांति है फिर आप अंदर से तो आप हिल गए हो ना। Are you all कि understanding? सबको समझ में आ रहा है। Inside you should not shake. You should know that Jesus is with you. अपने अंदर से नहीं हिलना चाहिए क्योंकि आपने जानना चाहिए कि यीशु मसीह आपके साथ में है। You fell down, don't blame Jesus. अगर आप नीचे गिर गए तो यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम मत डालें। Okay, all the time we are blaming some. All the time, sometimes we blame Jesus. और हर बार हम यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। Intercession is all about having patience. देखिए मध्यस्थी प्रार्थना सब कुछ धीरज के विषय में है I believe when you pray और हम विश्वास with करते हैं जब burden हम and with प्रार्थना करते हैं patience at the भार के right साथ time, और धीरज के साथ you और will सही see समय पर great reward. आप देखो कि बड़े बड़े इनाम को It takes sometimes years, कभी कभी सालों लग जाते हैं, but surely it happens. लेकिन सच में ये होकर रहेगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा You है? know, I remember some great men of God. और पासवान को याद आता है महान परमेश्वर के You know, जन they come and tell me, you know, Royston, today what we are seeing in Goa is such revival. और जो हम गोवा में ये बेदारी को देख रहे हैं, We were only 5 people that time praying for Goa. 1975, we used to go on Miramar Beach and pray. Kneel down 1975 whole में night and pray for Goa. सिर्फ 5 लोग थे और वे मिरामार में जाकर वो डीमी डालकर वो प्रार्थना करते And today थे। we are seeing so many churches. और आज के दिन हम देखते हैं कितने ही सारी कलसियाँ हो गए हैं। Intercession is all about having patience. देखिए मध्यस्थी प्रार्थना ये धीरज के विषय में है। Are you all understanding? क्या सबको समझ And में the आ रहा है? last thing I want to tell you, और आखिरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, intercession is being humble before the Lord. मध्यस्थी प्रार्थना ये परमेश्वर के सामने दीन होना है। You need to humble yourself before the Lord. परमेश्वर के सामने आपको दीन होना है। If you don't humble yourself, अगर आप दीन नहीं होते हो then I think you're not fit in the ministry of तो intercession. आप मध्यस्थी प्रार्थना में रहने के लायक नहीं हो। Even the clothes what you're wearing, God has given you. देखिए जो कपड़े आप पहन रहे हो वो भी परमेश्वर ने आपको दिया है। You don't say, you know, I'm working, I'm a CEO of a company. आप ऐसे मत बोले मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीईओ हूँ Oh, एक I don't have कंपनी time का, for intercession. मुझे मध्यस्थी प्रार्थना के लिए You समय need to नहीं है। make time and you need to be humble before the Lord. आपको समय बनाना है और परमेश्वर के सम्मुख If आपको God had not धीरज- given you those two hands, नर्म बनना है। will you be qualified for that job? अगर परमेश्वर ने नहीं किया होता तो क्या आप उस Will you जॉब have के लिए been the क्वालिफाइड CEO of that होते? company?
क्या आप सीईओ बनते उस How कंपनी many of you के? have seen blind people? कितने लोगों ने अंधे लोगों को देखा है? Have you seen a blind man? क्या किसी He अंधे cannot see मनुष्य को देखा है? anything. He cannot see anything. उसको कुछ दिखाई नहीं देता। You close your eyes like this and try to move around. आप Will you be आंखें able to बंद move? करके आजू बाजू में थोड़ा हिलने की कोशिश करें। Learn to humble yourself. अपने आप को दीन बनाइए। There is none like me. मेरे जैसा कोई नहीं है। Tell your neighbor you can be replaced. आप अपने पड़ोसी से कहो आपको कभी भी हटाया जा सकता है और दूसरे को ला सकते हैं। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Always humble yourself before the हमेशा Lord. नम्र और धीरज से रहे। That's why for the ministry of intercession we don't see much men, we see much women. और मध्यस्थी प्रार्थना में हम ज्यादा आदमियों को You know, नहीं we देखते men, लेकिन we are औरतों को all देखते the time we are proud, right? हैं। और जो आदमी होते हैं वो हमेशा गर्व से Let भरे us रहते humble हैं। ourselves before the Lord तो चलिए हम अपने आप को दीन बनाए परमेश्वर के and सामने। let us say, Lord, you have called us for the time like this. और परमेश्वर तूने ऐसे समय के लिए मुझे You know बुलाया है। Esther. How many of you know Esther कितने लोग एस्तर को from जानते the Old हैं? Testament? पुराने नियम में She से। was a queen, right? और वो रानी थी And the enemy had prepared, to kill all the Jews. और जो दुश्मन था वो सारे यहूदियों को मारने की साजिश में थे। And what happens? तो फिर क्या होता है? She goes and meets the king and tells all these things. और But वो before रानी that, she जाके राजा tells से मिलती है और the वो कहती entire है Jewish people to pray. और वो सारे यहूदी लोगों से प्रार्थना करने के लिए She विनती करती humbles है। herself. She वो was the अपने आप queen. को दीन बनाती है She क्योंकि still वो रानी humbles थी। herself. She was a queen. वो अपने आप को दीन बनाती है लेकिन वो रानी थी And she tells the people, please pray. और वो Fast. लोगों Let's से विनती fast. करती She doesn't है say pray. Let's fast. हम उपवास करें और प्रार्थना करें। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ She रहा है? humbles herself. वो अपने आप को दीन नम्र Your बनाती position है। does not matter to the आपका Lord. जो स्थाई है वो मायने You नहीं may be, रखता you may have hundreds of properties. और कितना 100 गुना भी Your आपका प्रॉपर्टीज हो position does not matter. आपकी स्थाई What मायने matters is नहीं your heart रखता। before the Lord. क्या मायने रखता है वो है आपका हृदय। And when your heart is you are humble enough in your heart, जब आपके हृदय में आप दीन और नम्र रहते हैं you will see when आप you pray देखोगे। things begin to work. चीजें होंगे जब आप प्रार्थना करोगे। You know, I never pray for myself. और पासवान ज्यादातर अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं करते I pray for my children, for my wife, but I don't pray for myself. अपने बच्चों के लिए पत्नी के लिए प्रार्थना I've करते come हैं। out of all that thing. उन सारी चीजों से वो बाहर आ गए Some हैं of us we only pray for ourselves. और थोड़े लोग सिर्फ हमारे लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा I've come out because the Bible is very clear. है? और पासवान ऐसे Jesus सारे already knows चीजों what से we बाहर need. है Jesus और already यीशु knows what जानते we हैं need. हमें क्या चाहिए So I'm come out of it. I never pray for myself, और इन सारी चीजों से बाहर है और अपनी खुद के लिए प्रार्थना नहीं but करते I pray लेकिन एक प्रार्थना for करते हैं others, दूसरों के लिए and that is what is required today. और यही जरूरत है आज के दिनों में। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? You may go through pain in your life. शायद हो सकता है दर्द से आप You गुजर may रहे go हो, through great difficulties, बड़े कठिनाई से गुजर but रहे हो, never stop praying for somebody else. लेकिन किसी और के लिए प्रार्थना करना मत रोकिए। Whenever you pray for somebody else, whenever you pray for somebody जब भी else, आप किसी के लिए प्रार्थना करते whenever हैं, you intercede for somebody जब भी आप else, दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं, God begins to bless your life. तो परमेश्वर आपके जीवन को God आशीर्वादित begins करना to शुरू heal करते you. हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देना शुरू करता है। God begins to change everything around you. परमेश्वर सब कुछ आपके इर्द गिर्द में बदलना He शुरू blessed करता है। Job. परमेश्वर ने अय्यूब को आशीर्वादित किया। He blessed Job. परमेश्वर ने अय्यूब को आशीर्वादित किया। We are also serving the same God, right? हम भी उसी परमेश्वर की सेवा कर रहे And, हैं and our God is not a partial God. और हमारा परमेश्वर मतलब How पार्शियल many of you all परमेश्वर know नहीं we है। are much more blessed than Job? कितने लोग जानते हैं हम अय्यूब से भी ज्यादा आशीर्वादित We are व्यक्ति much more हैं। blessed than Moses. हम मूसा से भी ज्यादा आशीर्वादित लोग Why? हैं। Because we क्यों? have Jesus with us. क्योंकि हमारे पास यीशु है इसलिए। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? So, from today, how many of you are going to really be in the ministry of intercession? तो आज से सच में कितने सारे लोग मध्यस्थी प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all rise up? तो चलिए हम सभी लोग उठ खड़े हो जाए। Let's thank God for this time. तो आइए हम परमेश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद दें। Father, we thank you, Lord, for this wonderful moment, oh Lord. पिता हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए, This wonderful time, oh ये Father. अद्भुत समय के लिए। Lord, we know one thing, oh Lord, प्रभु हम एक बात को जानते हैं that you have spoken into our lives. कि आपने हमारे जीवन में बात किया And truly, Lord, और सच में परमेश्वर you have called us in the ministry of intercession. और आपने हमें इस मध्यस्थी प्रार्थना की सेवकाई में बुलाया है। Lord, such a powerful ministry. कितना सामर्थ भरा सेवकाई। You have called us to pray for one another. हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया। And today, from today, oh Lord, we want to pray
even for our enemies, और आज के दिन से हम अपने शत्रु दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करना चाहते even हैं। for the ones who hate us, oh Lord. We want to उनके pray लिए for प्रार्थना them. करना चाहते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। We want to pray for them, oh हम Father. उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Bless all our enemies, oh Lord. हमारे हर एक शत्रुओं को आशीर्वादित Bless the करें। ones who have done wrong to us. आशीर्वादित करें उन्हें जिन्होंने हमसे Open up their बुरा eyes, oh व्यवहार Lord, किया so है। that they will know that you are उनकी alone, आंखें God. खोलिए कि वो जानने पाए कि आप ही उनके परमेश्वर You are हैं। their Savior, oh आप Lord. ही उनके उद्धार करता है। Change their lives, oh Lord. उनके जीवन को बदल As you दे। have changed our lives, change their lives as जैसे well. आपने हमारे जीवन को बदला है, Lord, आपने those उनके people who जीवन are को भी not doing बदले। our work, oh Lord, और जो लोग हमारे काम को नहीं कर रहे हैं who are refusing to sign our documents and all those things, we और जो pray for नकार them. रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के them, ऊपर O साइन Lord. करने के लिए, उनको भी आशीर्वादित Keep them करें, safe, oh Father. उन्हें सुरक्षित रखें। Lord, let salvation come into their lives. हम प्रार्थना करते हैं उद्धार उनके जीवन में Lord, we आए also pray for everyone in this place. और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस जगह पर And all हैं। of them will be wonderful and powerful intercessors, oh सभी लोग Lord. अद्भुत और सामर्थ्य भरे मध्यस्थी प्रार्थना करने You वाले have लोग called बने। us to pray, oh Father. आपने हमें प्रार्थना करने You के have लिए बुलाया chosen है। us to pray, oh Lord. आपने हमें चुना है प्रार्थना करने के लिए। And from today, oh और Father, आज के दिन से we are परमेश्वर going to be in this ministry of हम इस intercession. सेवकाई में रहेंगे मध्यस्थी प्रार्थना We के। are going to have burden for one हम another. एक दूसरे के लिए भार होगा। Oh, we are going to be patient, oh हम Lord. धीरज से भरेंगे And we are going to see और हम whatever we देखेंगे have been praying for, oh और Lord. जो कुछ भी हम प्रार्थना कर We're रहे going to हैं see the power of it, oh और Lord. हम इसके सामर्थ को हम देखेंगे। We know one thing, oh Lord. एक बात को जानते हैं, No matter what we are facing, चाहे जिस किस का भी सामना हम कर रहे हैं, we can always pray for one another. लेकिन एक बात हम दूसरों के लिए And प्रार्थना thank you, कर Lord, सकते for हैं। teaching us the importance of the ministry of और intercession. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जरूरत बताई है मध्यस्थी प्रार्थना के। Lord, thank you for this time. और इस समय के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। And all God's people say, आमीन। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.